Hello and good morning, everyone. I once again welcome you to day 6 of the NSS Special Camp 2020. Our guest speaker for today's session, Dr. E.V. Swaminathan, is a man with a dynamic personality. With unmatched skills of a trainer, a teacher, a counselor, and a consultant, Sir has been a pioneer in creating a value based society. With an extensive experience of being associated with about 40 industries, about 20 universities, 10 military forces, and many more, it gives us immense pleasure to have you amidst us. Sir has a unique distinction of conducting training at the highest battlefield of the world at Siachen Battle School at the Pakistan-India-China border. Today, we, the NSS volunteers of Carmel Convent School, Chandigarh, feel privileged to have you with us. Once again, we extend a warm welcome, sir. Thank you. Thank you. So, good morning, all of you, and namaskar. Thanks, Sanya, for your warm welcome and your sweet invitation. Thanks, Preeti, madam, also. Achana, before I begin, since all of you are the volunteers of NSS Volunteers Social Service, will you do some service? Yes or no? In case you say you are willing to do some social service, you can put a yes on the chat. Don't get angry with Swaminathan sir, but थोड़ा बहुत समाज सेवा अगर करने का इच्छा है, अरे वाह, thank you. Okay, so we begin with a small social service. मैं आपको दो ऑडियो सुनाऊंगा. एक तो you are listening to me. Is my voice audible to you? बस इतना ही समाज सेवा करना है, ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं ऐसा बोलता हूँ, तो which one's audio is better, the first one or the second one? So there's really not much of a difference. The first one or the second one? So both is fine, sir. Both. Both Achha, are no fine. difference. Both are fine. Good. So that's a small social service I wanted. Chalo, thank you very much. Today's topic is a very wonderful topic. I will write. Are you able to see the slide? Yes, In sir. case yes, Yes, do sir. a little bit of social service by raising your hand. Only madam is doing social service, eh? Okay, I can see the girls also. Okay. The topic is this topic, the value of values, okay? What I'm going to do, my dear friends, is I'm going to start this session with a very wonderful story. Do you love stories? In case you love stories, say yes on the chat. Oh, wow. Very good. I was interacting with my engineering students in Mumbai. So when I asked my engineering students, all graduate, postgraduate students, do you love stories? So they were all like robots, no expression on the face. No, sir, we are all engineers, sir. Very mechanized engineers, robotic engineers. हम लोग ये स्टोरी बोली तो बच्चे को खेल है. मैंने कहा, do you love stories? No. After all, you are all engineers. फिर मैंने कहा, okay, do you love stories? Then they started raising. Yes, sir. Love story हमें बहुत अच्छा लगता है. So how many of you love stories? Say yes on the chat. अरे, oh my dear friends, कोई yes ही नहीं लिख रहा है. अरे वाह. Okay. Thank you. So I am going to start this session with a very wonderful, beautiful, love story. The story goes on like this. Listen to me very carefully. The place was New York railway station. The time was morning 10 a.m. And in this New York railway station, a very young, handsome military officer, Lieutenant John, खड़े थे. और क्या कर रहे थे? अपनी महबूबा का इंतजार कर रहे थे. Can you give me the English translation of the word महबूबा? Let me check your English vocabulary. After all, Carmel students, Chandigarh. Can you tell me the English translation of the word महबूबा? beloved. हाँ नहीं चैट में लिखो. Yes, चैट में लिखो. Yes, I have heard someone telling me. चैट में लिखेंगे? हाँ, क्योंकि जब आप चैट में लिखते हो ना तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवित हूँ. Okay, good. My God, wonderful answer. Your vocabulary is too good. You should come down to Mumbai and you should transfer some of your vocabulary to my engineering students. मैंने अपने engineering students से पूछा, महबूबा का English translation क्या है?
एक थोड़ा सोचता और कहता सर, डार्लिंग सर। मैंने कहा यार सच अ क्रूड डेफिनेशन, थोड़ा अच्छा वाला शब्द यूज करना। बिलवर्ड इज अ वेरी गुड मीनिंग, ओके, गुड वर्ड। सो लेफ्टिनेंट जॉन न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन में खड़े होकर ही वॉज वेटिंग फॉर हिज बिलवर्ड, अपनी महबूबा का इंतजार कर रहे थे, जिनसे वो बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे, लेकिन आज तक अपनी महबूबा से मिले नहीं थे। Lieutenant John, standing in the New York railway station, was wondering how he got acquainted with his beloved. Around 3 years back, Lieutenant John had gone to a library. He was referring some books, and suddenly he came across one book in which a person in a piece of paper had written very wonderful comments about that book. तो लेफ्टिनेंट जॉन ने वो कमेंट्स पढ़ा, वेरी वंडरफुल थॉट्स, ग्रेट थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, एनर्जेटिक थॉट्स, क्रिएटिव थॉट्स, थॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, थॉट्स ऑफ विजडम, बहुत सकारात्मक संकल्प। तो लेफ्टिनेंट जॉन ने वो किताब के बारे में जब वो पेपर में पढ़ा ना, तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। सो ही वॉक्ड अप टू द लाइब्रेरियन एंड आस्क्ड द लाइब्रेरियन, डू यू नो हु हैज इश्यूड दिस बुक बिफोर? व्हाई नॉट? तो लाइब्रेरियन ने उनका रिकॉर्ड चेक किया और कहा, सर, हर नेम इज नैन्सी। तो लेफ्टिनेंट जॉन ने कहा, कैन आई गेट द ईमेल आईडी ऑफ नैन्सी? व्हाई नॉट? एंड लाइब्रेरियन गेव द ईमेल आईडी ऑफ नैन्सी टू लेफ्टिनेंट जॉन। लेफ्टिनेंट जॉन घर आए, इमीडिएटली नैन्सी को ईमेल किया, नैन्सी, योर व्यूज आर वंडरफुल, ग्रेट, एलिवेटेड, इंस्पायरिंग, मोटिवेशन, वंडरफुल थॉट्स। तो नैन्सी का जवाब मिला, थैंक यू जॉन। और धीरे धीरे जॉन और नैन्सी के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। After some time, they became very wonderful friends. एक दिन जॉन ने नैन्सी को ईमेल किया, नैन्सी, कैन यू प्लीज सेंड मी योर फोटोग्राफ? तो नैन्सी ने लिखा, देखो जॉन, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ वी लुक, मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज हाउ वी थिंक। हम कैसे दिखते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे सोचते हैं। अब लेफ्टिनेंट जॉन ने भी रिप्लाई किया, यस नैन्सी, दिस आल्सो ग्रेट, वंडरफुल, एलिवेटेड थॉट। अब क्या करें, यू नो। अचानक जॉन की पोस्टिंग एक दूसरे शहर में हो गई। वहां से भी जॉन बराबर नैन्सी को ईमेल करते रहे, एंड आफ्टर सम टाइम द फ्रेंडशिप ऑफ जॉन एंड नैन्सी blossomed into love. 3 years later, he was posted back in New York. लेफ्टिनेंट जॉन न्यूयॉर्क आते ही साथ नैन्सी को ईमेल किया, नैन्सी, आई एम बैक इन न्यूयॉर्क, आई वुड लव टू मीट यू। तो नैन्सी ने लिखा, यस जॉन, इवन आई एम क्यूरियस टू मीट यू। कहां मिलेंगे? न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन, समय मॉर्निंग शार्प 10 AM। जॉन ने लिखा, बट नैन्सी, हाउ डू आई आइडेंटिफाई यू? मैंने तो आज तक आपको देखा नहीं है। तो नैन्सी ने लिखा, यस जॉन, दिस इज अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम। मैं काम करूंगी, अपने सिर पर एक सुंदर सा गुलाब का फूल पहन कर आऊंगी, एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मी। Lieutenant John, standing in the New York railway station, was wondering who would be that beautiful and pretty girl who would be my Nancy. और अचानक जॉन ने देखा बहुत दूर से वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी गर्ल वॉकिंग टुवर्ड्स जॉन। जॉन मन ही मन प्रार्थना करने लगे, ओ गॉड, लेट दिस बी माय नैन्सी, लेट दिस बी माय नैन्सी। और एकदम उसके जाके सामने खड़े हो गए। द गर्ल सेड, हे यंग मैन, यू आर ब्लॉकिंग माय वे। जॉन ने उसके सर पर देखा, नो गुलाब का फूल। काश ये मेरी नैन्सी होती, राइट? एंड लेफ्टिनेंट जॉन सॉ दिस प्रिटी गर्ल वॉकिंग बिसाइड जॉन। जॉन बस उसको देखते रहे। जैसे ही पीछे मुड़े, जॉन टू हिज अटर सरप्राइज क्या देखा? अराउंड 20 feet ahead, a very old lady, more than 70 years of age, with a very beautiful red rose on her head. जॉन को लगा जैसे सारा आकाश और आसमान उसके सर पर आके टूट गया। जॉन ने अपनी आंखें बंद की और अपने भाग्य को कोसने लगा। लेकिन फिर उन दिनों को याद करने लगे जब जॉन और नैन्सी के बीच में दोस्ती हुई थी। Those wonderful thoughts, that great thoughts, that beautiful thoughts. और जॉन को लगा जैसे वो विचारों के वाइब्रेशंस उनको टच कर रहे हैं। टच करते ही साथ जॉन के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराते उन्होंने आंखें खोला, तब तक that old lady just in front of him. जॉन ने उसको चेहरे को देखा। A face more than 70 years of age, full of wrinkles. लेकिन जॉन ने देखा उसके चेहरे पर वो दिव्यता थी। There was divinity in her face. आंखों में वो रूहानियत थी। जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, नैन्सी, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट यू। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ।
My name is Lieutenant John. Nancy, your views are wonderful, great, elevated. I'm very impressed with your thought process, Nancy. Nancy, क्यों ना हम कोई नजदीक के रेस्टोरेंट और गार्डन में जाएं, एक कप चाय या कॉफी पिएंगे, खूब बातें करेंगे. That old lady replied, What? मेरा नाम नैन्सी नहीं है और ये सब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. जॉन ने कहा, अगर आपका नाम नैन्सी नहीं है तो सिर पर इतना सुंदर सा गुलाब का फूल पहनकर चल क्यों रहे हो रेलवे स्टेशन में. That old lady replied, अच्छा ये गुलाब का फूल, अभी अभी यहां से वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी गर्ल गई थी ना, उन्होंने ये गुलाब का फूल मेरे सर पर रखा और मुझसे कहा, माता जी, अगर कोई युवक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अगर वो युवक कहता है कि आपके विचार बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, माता जी, अगर वो युवक आपको किसी रेस्टोरेंट और गार्डन में इनवाइट करे ना, तो प्लीज उस युवक से कहना उसकी नैन्सी सामने वाले गार्डन में उसका इंतजार कर रही है. कैसा लगा लव स्टोरी? जिनको अच्छा लगा, ओ आई कैन सी आनंद, है ना. भाई आपका चेहरा तो एकदम खिल गया है. यस. नाउ व्हाट्स द समरी ऑफ द स्टोरी? मैंने जब अपने इंजीनियरिंग बच्चों को सिखाना, बाप रे, सब लोग इतनी जोर से तालियां बजाए. बोला, सर हमारा जीवन एकदम रोबोटिक मैकेनाइज्ड हो गया था, आपने ये लव स्टोरी सुनाकर हमारे दिल को कितना सुकून और खुशियां दी. यस. फिर मैंने कहा, आई टोल्ड माय इंजीनियरिंग से, यू नो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस स्टोरी? द समरी ऑफ द स्टोरी, माय डियर फ्रेंड्स, इज टेल मी whom you love and I will tell you how you are. आप ये बताइए आप किससे प्यार करते हैं और हम बताते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है. फॉर when we love people of the same age, that love is called as friendship और दोस्ती. जब हम अपने बड़ों से प्यार करते हैं ना, तो उस प्रेम या प्यार को रिस्पेक्ट, रिगार्ड, आदर और सम्मान कहा जाता है. जब हम अपने छोटों से प्यार करते हैं ना, तो उस प्यार को सहनशीलता अथवा टॉलरेंस कहा जाता है. My dear friends, when you love yourself, that love is called as self-esteem or swaman. जब आप सत्य से प्यार करते हो, when you love truth, that love is called as vigyan or science. The love that parents have for the children, that love is called as tyag or sacrifice. The love we teachers have for other students, that love is called as guru shishya bhavna. जब आप देश से प्यार करते हो, that love is called as देशभक्ति or patriotism. When you love your team members, that love is called as team spirit. जब आप इस सुंदर सी प्रकृति से प्यार करने लगते हो, that love is called as जीवन और life. My dear friends, when you love determination, जब आप दृढ़ता से प्यार करते हो, that love is called as success और सफलता. जब आप मुस्कुराहट से प्यार करते हो, when you start how to smile in your life, what is that love called as? जब आप मुस्कुराते हो, राइट, उस प्यार को क्या कहते हैं? थोड़ा चैट में लिखेंगे. When you start smiling, no matter how much challenges and problems you have, what is that love called as? अरे वाह, bliss. That's wonderful यार. Self love. Wow, your vocabulary is too good. Yes. तो मैं चाहूंगा अगले 1 घंटे ना मुस्कुराते रहना. And I'll tell you that is the greatest social service you can do to humanity today in present context when we're all stuck up in our home sweet home. Yes. When you start to smile irrespective of all the challenges and problems that we have, my dear friends, that love is called as bliss, that love is called as self-love, that love is called as happiness, that love is called as positivity, that love is called as stress management. आप जो भी बोलेंगे, you're absolutely right. Yes, it is something which is called as spirituality. Every answer is a right answer. That's very, very important. When you love positive thinking, that love is called as positive personality. And my dear friends, the summary of the whole story is, when you start loving the ocean of love, the Almighty God, that love is what is called as spirituality. And since all of you are NSS volunteers, when you start loving the whole world and humanity, that love is called as social service. When you start loving the whole world and humanity, that love is called as social service. Right? ये थी हम सबकी प्रेम कथा. Okay. So in social service, you know, जब भी आप social service के क्षेत्र पर उतरते हो,
So you require a perfect balance between heart and head, right? Since you all like this love story, your heart is perfectly okay. But what is very, very important is your head should also be okay. There should be a perfect balance between the left brain and the right brain. Left brain is all logical, rational, mathematical, quantitative, maths, physics, chemistry. The right brain is emotional. The right brain is intuitive. The right brain is empathy. The right brain is feelings. तो बहुत लोग जो सोशल सर्विस करते हैं अगर सिर्फ राइट ब्रेन से करेंगे ना तो कहीं ना कहीं धोखा खाने के चांसेस है. इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द लेफ्ट एज वेल एज द राइट ऑल्सो. हार्ट आपका बहुत अच्छा है लेकिन हार्ट के साथ हेड को भी लेकर आना बहुत जरूरत है. इसे इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है. There's a very wonderful slogan in English which says, follow your heart. Follow your heart. दिल की बात सुनो, but use your head. Follow your heart, but use your head. और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं, choose such a kind of a profession where it is connected with social service, where you're using your head, at the same time you are wealthy also. Think about such a kind of a profession. That's very, very important. Head और heart. और हर प्रोफेशन में आप ये कर सकते हो. सोशल सर्विस का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम लोग कुछ समय निकालकर धारावी स्लम्स में किसी की मदद करें. Yes, if you're able to do that, please do that. लेकिन every second you can be a part of this beautiful domain of social service. And that, the basic factor required is that love. At the same time, you should use your head also. चलो हम लोग देखते हैं, आप लोग हार्ट में तो 100% पास हो गए, आपका हेड कैसा है उसको जरा चेक करते हैं. वैसे मुझे मैडम बता रही थी कि कार्मल के जो बच्चे हैं ना बड़े बुद्धिशाली हैं, करेक्ट? सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. तो आई विल गिव यू अ स्मॉल एक्सरसाइज जस्ट टू एक्टिवेट योर हेड. आर यू रेडी? से यस, से यस. आर यू रेडी? यस. वाओ. आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्माइलिंग के साथ आप ये एक्सरसाइज करना. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल पजल. I was told by a madam that you are all 11th and 12th standard students. So I am not going to ask you anything mathematics, physics, chemistry. I am going to ask you a simple puzzle of 5th or 6th standard. Happy? Simple. Okay? चलो, अगर आपको कुछ डाउट है ना, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो you can use your lifelines. पापा वर्क एट होम है तो उनको बुला लो. मम्मा किचन में ढमढम कर रही है तो उनको भी बुला लो. आपके भाई बहने यहाँ वहाँ बैठे हैं तो सारे टीम बिल्डिंग करके सोशल सर्विस करो. बोला Professor Swaminathan is going to give you a simple puzzle. Okay? And let me see who gets the answer first. Let me see who gets the answer first. मैं देखता हूं कि हमारे प्यारे दोस्तों से और प्रिय सखियों में नंबर 1 कौन आता है. Okay? All of you ready? Yes. So here we go. Simple puzzle. आपका हार्ट तो बहुत अच्छा है, हेड कैसा है वो देखने के लिए मैं कर रहा हूं. राइट. So don't worry, it's a very simple exercise. Here we go. So look at this simple puzzle. First row, this plus this equal to 9. This plus 2 gun equal to 13. Gun minus the skulls equal to 1. The last one is this plus this into this. Your time starts now. 22. My God, प्रिय सखी, प्यारी सखी, बोलना नहीं, चैट में लिखो, चैट में लिखो. My dear sweet girl, put it on the chat. I know you are very बुद्धिशाली. चैट में लिखो ताकि सबको चांस मिले. चैट में लिखो बच्ची. Yeah. Put it on the chat. हाँ, जिसने 20 बोला वो 20 भी लिखो. हाँ, 19 ओ बहुत सारे आंसर्स मिले. सॉरी मैं को चैट में निकालने में थोड़ा टाइम हो गया था. 19, 12, 23, 27. वाओ, कार्मल स्टूडेंट्स वेरी बुद्धिशाली, वेरी वेरी बुद्धिशाली. One question, you are so creative, hundreds and hundreds of answers. 17, 22, 27, 27, 10. Wow, 10, 19. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Very good, very good. 27, 22. Good. अच्छा लगा. It was not very important whether you gave the right answer or wrong answer, but you participated.
That was very, very important. Okay. Now, why did I give you this small puzzle? Your head is perfectly okay, your brain, everything is okay. आप लोग एकदम ठीक हो, क्योंकि सही या गलत इंपॉर्टेंट नहीं था. आपने अपने माइंड को यूज किया, हेड को यूज किया और एक जवाब निकाला. That was not important. But I will introduce you to one wonderful, intelligent person. And his name is Sir Albert Einstein. Sir Albert Einstein had an IQ of, कहते हैं, more than 155 plus. कहते हैं IITs के बच्चे का जो IQ होता है ना, इस 105 plus. इसका मतलब ये है कि आइंस्टीन आपसे और हमसे थोड़ा ज्यादा बुद्धिशाली तो हैं. तो आइंस्टीन ने ना दोस्तों बहुत पहले एक बहुत सुंदर डायलॉग बोला था. मैं वो डायलॉग आपको बताता हूं. इट्स नॉट स्वामीज डायलॉग, बट इट इज आइंस्टीन्स डायलॉग. I read it out for you. Einstein said, if I had only 1 hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only 5 minutes finding the solution. ये मैंने नहीं कहा है, सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है. और आइंस्टीन बहुत बुद्धिशाली थे. वो कहते हैं, अगर मेरे पास 1 घंटे का टाइम है इस सारी पृथ्वी को बचाने के लिए, और उससे बड़ा कोई सोशल सर्विस उस वक्त कर नहीं सकता है. आई एम स्पीकिंग ऑफ द टाइम फैक्टर. आइंस्टीन कहते हैं, इफ आई हैड 1 hour टू सेव दिस प्लैनेट अर्थ, आई वुड स्पेंड 55 minutes डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड ओनली 5 minutes टू गेट ऑन टू द सॉल्यूशन. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने आपको जो पजल दिया ना, आप लोग श्वास लेने के पहले आपका आंसर चैट में आने लगे थे. Right? So whenever you are trying to define any problem now, you're working on the problem, spend 55 minutes, approximately 95 to 98% analyzing the problem and then work on the solution. और इसमें जितने भी आप लोग फ्रेंड्स हैं ना, आपकी कोई गलती नहीं थी. आप लोग सब लोग निर्दोष हो और बहुत अच्छे भी हो. प्रॉब्लम इज विद स्वामीनाथन. जब मैंने वो आपको पजल दिया ना, मैंने बीच में एक डायलॉग बोला, let me see who gets the answer first. Why should Swami make that dialogue? So I'm very sorry. I sincerely apologize for the same. I retract back that statement. हमेशा हम लोग ना एक कंपटीशन में रहते हैं, राइट? हम लोग हमेशा दूसरों के साथ compete करते रहते हैं. And this competition is what is the major problem in the society today. और उसके लिए शायद एज अ टीचर आई शुड इम्प्रूव, एज अ पेरेंट आई शुड इम्प्रूव, एज अ सोसाइटी आई शुड इम्प्रूव. डू यू अग्री विथ मी प्रिय सखिया? डू यू अग्री विथ मी? स्वामी शुड इम्प्रूव एंड स्वामी शुड करेक्ट माई सेल्फ. स्वामीनाथन सर हैं, राइट? तो अगर मुझे ठीक होना चाहिए तो अच्छा, मैडम ही लिख रही है. प्रीति मैडम इज राइटिंग, स्वामी आपको सुधरना पड़ेगा. यस यस मैडम, हम लोग दोनों सुधर जाते हैं. आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ. सोशल सर्विस के पहले हम लोग थोड़ा सुधरते हैं. और हम लोग पता है क्या करते हैं, बचपन से लेकर बच्चों को ऐसे कंपटीशन में धक्का मार देते हैं. सोशल सर्विस में भी फिर कंपटीशन हो जाता है. अरे सोशल सर्विस इज ऑल अबाउट लव यार. प्रेम की बात है, मोहब्बत की बात है, मदद की बात है. वहां पर भी कंपटीशन पे लगे हुए हैं. इसलिए अगर सोशल सर्विस करना है ना, डोंट कंपीट विथ एनीवन. हाँ, दूसरों की विशेषता बहुत अच्छी है, उस विशेषता से सीखो, लेकिन कंपटीशन नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए बच्चों? सोशल सर्विस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इट स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट सी. इट स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट सी. देयर शुड बी नो कंपटीशन बट कंपैशन. वाओ, कंपैशन. वाओ, योर इंग्लिश इज टू गुड यार. यस, कंपैशन. एनी अदर? कमिटमेंट. वाओ, कंपैशन, charity. Oh, great, yaar. Great. Your vocabulary is too good, Yes. Consideration. Cooperation. हाँ, you are right, Shreya. Cooperation होना चाहिए. ठीक है? तो आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपको नंबर 1 हु स्टैंड्स फर्स्ट बोलकर मैंने गड़बड़ किया. अभी मैं फिर से वो पजल दिखाता हूं. Now take your own sweet time. आराम से, शांति से, प्रेम से, राइट? फिर वो आप जवाब ढूंढना. ठीक है? Here we go. I'll put up the slide once again. यस, अब आराम से देखकर जवाब दीजिएगा. टेक योर ओन स्वीट टाइम, डोंट कंपीट विथ अदर्स. ठीक है? आराम से देखकर अब मुझे जवाब दीजिएगा.
Let me see. 10. You can change your previous answers also. ऐसा नहीं कि वही आंसर पकड़ के रखना है. 10, 11, 12 भी बोल दीजिए, सारा परिवार आ जाएगा. हाँ, 22, 27, 10. Okay, good. No issues, right? See, whether you got the answer right or wrong is immaterial, my dear friends. But अभी आपने क्या किया पता है? जब वो पजल को देखे तो you were not into a race, you were not into competition. आपने आराम से देखा और जवाब दिया. That learning is what was very important. But anyway, let us see what is the right answer. बहुत लोगों को आंसर सही मिला है. That is absolutely right. See, this plus this equal to 9. Therefore, one leaf of the scissor is equal to 1. Okay. 3 plus 2 guns equal to 13. Therefore, one gun is equal to 5. Right? You got it? Yes. Now, 5 minus 2 skull equal to 1. Therefore, 1 skull equal to 2. Now, the last part. Okay. 2 plus 5 into 4. This was not 3, it is 4. 2 plus 5 into 4. As per BODMAS, 5 into 4 is 20. 20 plus 2 is 22. The right answer is 22. So I congratulate all those people who got the answer right. I also congratulate all those persons, all my wonderful friends in Sakhiya who have learnt what Einstein was trying to teach us. That if I've got 1 hour to save this planet Earth, I would spend 55 minutes analyzing the problem and only 5 minutes to get on to the solution. अब आइंस्टीन के एक और डायलॉग सुनते हैं. आइंस्टीन ने एक बहुत प्यारी सी बात कही थी, राइट? अच्छा, बिफोर आई बिगिन, ये सोशल सर्विस करने के पहले, कैन यू माय डियर फ्रेंड्स इन सखिया टेल मी व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम दैट इंडिया, द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड इज फेसिंग? कुछ प्रॉब्लम्स आप जरा चैट में लिख सकते हैं क्या? व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम दैट इंडिया, द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी इन लार्ज इज फेसिंग? 1, 2, 3 जरा थोड़ा लिखेंगे क्या चैट में? थोड़ा लिख दो प्लीज. करप्शन. Ananya, you are right. Very good. Corruption. Garbage disposal. Correct. Communal violence. Wow. Poverty. Intolerance. Illiteracy. Competition. Violence. Border issues. Discrimination. Lack of peace of mind. Mindset of the people. Global warming. Hunger. Thought process of people. Poverty. Unhappiness. Water shortage. My God. चंडीगढ़ में पानी वानी तो है ना. केरला में थोड़ा ठीक है, लेकिन वाटर इज अ वेरी मेजर. इलिटरेसी. Funding, impact of government changes, environmental problem, mental illness, disparity in resources. Wow! कार्मल के बच्चे, आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन आपका दिमाग भी वंडरफुल है यार. इतने छोटे छोटे उम्र में आपको सारी दुनिया का प्रॉब्लम पता है. Now let me check your balance between head and heart. अब इतने प्रॉब्लम को आप चुटके चुटके प्यारी प्यारी सखियां कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? बाय द वे, प्रीति मैडम, ये एनएसएस में बनने से कितने मार्क्स मिलते हैं? एनएसएस का अगर हम लोग कोई मार्क्स नहीं है. वाओ. प्रीति मैडम, जब ये कोरोना वोरोना ठीक हो जाएगा ना, तो अपनी ये प्यारी प्यारी सखियों को बॉम्बे लेकर आना. आई विल टेक देम टू माय मुंबई यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहां मुंबई यूनिवर्सिटी के लोग, मैं कहता एनएसएस में थोड़ा सा काम करो, सेवा करो. सारे बच्चे बोलते हैं, सर हाउ मेनी मार्क्स वी आर गोइंग टू गेट सर. एंड आई एम वेरी हैप्पी दिस प्यारी प्यारी सखियां आर डूइंग एनएसएस, नो मार्क्स. दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग इट, राइट? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम एंड वी वर साइनिंग एन एमओयू. Lucknow University became the first university in the whole of the country which has started a kind of a thought lab wherein you work upon values, you do research on values. That's the beautiful part of it. Anyway, हाँ, नंदिनी कहती है, illiteracy teach unprivileged people at a personal level, creating awareness, solve environmental issues by recycling. Wow, very good. So I really appreciate all of you, my dear friends. अब इतने सारे problems आपने किए ना, by taking small steps. Yes, all these are perfectly right. बहुत अच्छा. अब देखते हैं आइंस्टीन क्या कहते हैं. आइंस्टीन कहते हैं, बहुत सुंदर डायलॉग आइंस्टीन बोलते हैं. He says, no problem can be solved from the same consciousness that created it. No problem, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आइंस्टीन कह रहे हैं. No problem can be solved from the same consciousness that created it. इस आप में से बहुत सारी प्यारी सखियों ने ये लिखा था.
हर प्रॉब्लम के पीछे जो प्रॉब्लम आपने बताया ना, इट इज एट द हार्डवेयर लेवल, लेकिन वायरस सॉफ्टवेयर में आ गया। और किसी ने लिखा इट इज अ थॉट प्रोसेस, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, लेकिन सारा प्रॉब्लम इज एट द सॉफ्टवेयर। सारा प्रॉब्लम वायरस कॉन्शियसनेस लेवल में है। वहां पर जब हम ठीक करना आरंभ करेंगे, if you take poverty, if you take population, if you take unemployment, if you take environment issues, if you take water shortage, anything, the virus is at the software. इसलिए I think we should pay a lot of attention working at the consciousness level. अब आप पूछेंगे स्वामी सर consciousness level मतलब क्या है? It is basically our emotions and feelings. And the three most common emotions that the whole world is facing, it has been facing for many years, but in the last 9 months, और पिछले 2 दिनों में तो ज्यादा हो गया जब ब्रिटेन से ये समाचार आया कि एक नया वायरस स्टार्ट हो गया है। आप लोग ने अगर समाचार नहीं सुना होगा तो बहुत अच्छा, ज्यादा सुनना नहीं, आपको रात को अच्छी नींद आती होगी, लेकिन जो लोग सुनते हैं उनकी तो नींद ही उड़ गई है। The three most common emotions that the whole world and the society is facing is fear and worry. डर है, चिंता है। Number 2, lot of anxiety is there, anger is there. गुस्सा आ रहा है, चीफ मिनिस्टर पे गुस्सा आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर पे गुस्सा आ रहा है, मम्मी डैडी पर गुस्सा आ रहा है, प्रीति मैडम के ऊपर गुस्सा आ रहा है, स्वामीनाथन पर गुस्सा आ रहा है। यार तुम सुबह सुबह 10 बजे भाषण देने के लिए आ जाते हो, किसने बोला तुमको आने के लिए? मैं 1 हफ्ते से सुन सुनकर मेरा सर पक गया है, राइट? नेचुरली भाई, एंगर। और मैं आपको खुशखबरी देता हूं, अगर आप लोग फ्री में एनएसएस का प्रोग्राम कर रहे हो, प्लीज डू नॉट गेट एंग्री विद स्वामीनाथन सर। आई एम नॉट चार्जिंग एनी मनी फ्रॉम योर माउंट कार्मेल स्कूल, मैं भी फ्री में कर रहा हूं। तो जितना आपका दिल अच्छा है ना, उतना मेरा भी दिल अच्छा है। इसे प्लीज मेरी प्यारी सखियां, स्वामी पर गुस्सा नहीं करना, ठीक है? और कुछ लोगों को तो वायरस पर गुस्सा आ रहा है। कहां से टपक गया? चाइना से आ रहा है, चाइना पर गुस्सा कर रहे हैं। लॉट ऑफ एंगर इज देयर, and most important is there's a lot of insecurity and helplessness, right? अब इसको ठीक करना बहुत, this is what is the negative consciousness. We have got only 1 minute, हम लोग साइलेंस में बैठते हैं, right? Yes, इस स्लाइड पर मैं छोड़ देता हूं आपको। Where a great leader like Dr. Kalam is telling, डरना नहीं है बच्चों, we should teach our kids how to dream. अच्छे सपने देखना है। With all the problem can we create positive consciousness. और मैं आपको एक चित्र बताकर, एक 9th स्टैंडर्ड की गर्ल स्टूडेंट ने है ना बहुत सुंदर इमेज बनाया। It's around a 4 minutes video, but I think there is a paucity of time, so I'll not take much of your time. लेकिन कहते हैं दोस्तों, outside nature is a reflection of nature inside. बाहर हम जो कुछ भी देख रहे हैं ना, ये हमारे अपने अंदर की कॉन्शियसनेस का प्रतिबिंब है। Poverty, unemployment, corruption, all this is a reflection of our inside nature. जिस दिन हम अपने inside nature को ठीक करने लगेंगे ना, बाहर automatically, outside situation automatically will become okay. There's a 9th standard girl student who created a beautiful vision statement, and she writes, we dream of India that is full of joy, peace, bliss, health, healing, happiness, and certainly nature full of tranquility. That's the vision statement that she has created, okay? So I feel a very great leader, बापूजी कहते थे, I must become the change I wish to see in the world. जो परिवर्तन मैं समाज में, दुनिया में देखना चाहता हूं ना, उस परिवर्तन का स्वरूप हमें खुद बनना पड़ेगा। I must become the change I wish to see in the world. तो कैसा होना चाहिए? Yes, we should always be like this. So there's a very wonderful statement, okay? If I am happy, I know there are problems all outside, but if I'm happy, happy का मतलब है peace and stability, I can make myself healthy and this world a better place to live, right? मैंने जब अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये फोटोग्राफ दिखाया,
तो एक ने खड़े होकर पूछा, सर ये आपका बचपन का तस्वीर है क्या? मैंने कहा तेरे को कैसे पता चला? बोला सर उसके सर में बहुत बाल हैं और आप भी कुछ वैसे ही दिखते सर. They say a small child smiles and laughs 300 times per day. एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है. ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे सोशल सर्विस वाले लोग बैठे ना, आप सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? जरा चैट में लिखकर बताओ. हाउ मेनी टाइम्स यू स्माइल पर डे? हाउ मेनी टाइम्स यू स्माइल पर डे? हाउ मेनी टाइम्स यू स्माइल पर डे? 4 to 5 times all day, 5 to 10 times. Wow, not noticed one time. अरे अकाउंट खोल दिया. Most of the time, the whole day. Yes, right. And I'm very happy to tell you, IIT Kharagpur has become the first IIT who has started a course on happiness. All successful people are not necessarily happy, but all happy people will one day become successful. इसे ये मत सोचो कि सारी दुनिया का प्रॉब्लम ठीक होगा तब मैं अपने मन को शांत, स्थिर और खुशी में लेकर आऊंगा. इट्स अ रॉन्ग सर्किट डायग्राम. द राइट सर्किट डायग्राम इज, in spite of all these problems, if I bring my mind to a state of peace, stability and happiness, then I get the inner strength and power to manage the external situations. That's the right circuit diagram. Okay, so my dear friends, आजकल हम लोग एजुकेशन सिस्टम में सबको बीई, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, बीबीए करते हैं, but the best graduation degree in life is be calm, be cool, be cheerful. That's what is very very important, right? Okay, एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से कहा, right, work on your happiness index. बोले यस सर. तो मैंने कहा जस्ट इमेजिन करिए, if you are able to buy one of the best mobile, how will you feel? सर बहुत अच्छा लगेगा सर, है ना. मोबाइल फोन, स्मार्टफोन से आजकल हम लोग कंप्यूटर गेम्स भी खेलते हैं. मैंने कहा अच्छा बच्चे बताओ कौन सा स्मार्टफोन खरीदने से योर हैप्पीनेस विल इंक्रीज? एक ने कहा सर नेचुरली सर एप्पल सर. ओके, मैंने कहा वेरी गुड, आईफोन है, एप्पल है. मैंने कहा जस्ट इमेजिन करो थोड़ा हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाते हैं. बोला हाँ बोलिए सर. मैंने कहा जस्ट इमेजिन यू गेट अ जॉब टू वर्क इन एप्पल, हाउ आर यू फीलिंग? सर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर. मैंने कहा नाउ आई विल इंक्रीज योर हैप्पीनेस इंडेक्स आल्सो, थोड़ा बहुत. बोला सर बोलिए. मैंने कहा जस्ट इमेजिन इफ यू बिकम द सीईओ एंड एमडी ऑफ एप्पल. जैसे मैंने कहा बच्चों को कहा ना, तो बच्चे ने कहा सर हार्ट अटैक आ रहा है सर, हार्ट अटैक आ रहा है. मैं कहा नहीं, आई वांट यू टू सर्वाइव, राइट. लेकिन जस्ट इमेजिन करो ना, इफ यू बिकम द सीईओ एंड एमडी ऑफ एप्पल, कैसा लगेगा? करेक्ट, हाउ वुड यू फील? तो जब बच्चों ने कहा सर इतना अच्छा लगेगा, आवर विजन अचीव्ड सर, तो मैंने कहा ओके नाउ आई वांट यू टू मीट दैट वंडरफुल पर्सन. क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मैं इतना धन कमाऊं, धन कमाने के बाद मैं सोशल सर्विस करूंगा. नो, धन इज इंपॉर्टेंट, बट लेट्स लिसन टू स्टीव पॉल जॉब्स. was an American business magnate and investor. He was a chairman, chief executive officer and co-founder of Apple. Sometime before we lost this wonderful person, he was suffering from pancreatic cancer. जाने के पहले ना उसने एक बहुत प्यारा सा प्रेम पत्र लिखा, लव लेटर. I want you to read this love letter. What he says is, chasing the money and working so hard your life passes you, but that isn't what life is all about. Sometimes you need to take a step back, breathe and re-evaluate things. Steve Jobs' last words, I reached the pinnacle of success in the business world. In others' eyes, my life is an epitome of success. However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I'm accustomed to. At this moment, lying on the sick bed and recalling my whole life, I realize that all the recognition and wealth that I took so much of pride in have failed and become meaningless in the face of impending death. In the darkness, I look at the green lights from the life-supporting machines and hear the humming mechanical sounds. I can feel the breath of God of death drawing closer. Now I know when we have accumulated sufficient wealth to last a lifetime, we should pursue other matters that are unrelated to wealth. Should be something that is more important. Perhaps relationship, perhaps art, perhaps a dream from the younger days. Non-stop pursuing of wealth will only turn a person into a twisted being, just like me. God gave us the senses to let us feel the love in everyone's heart, not the illusions brought about by wealth.
The wealth I have won in my life, I cannot bring with me. What I can bring is only the memories precipitated by love. That's the true riches that will follow you, accompany you, giving you strength and light to go on. Love can travel 1,000 MILE and his pen dropped down dead. Yes, Steve Paul Jobs. Steve Paul Jobs. The most successful and one of the most wealthiest person of this planet Earth. कितना प्यार से एक लव लेटर लिखा है. इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वेल्थ खराब है. No. But non-stop pursuing of wealth, which is sometimes called as greed, and major problem, the root of corruption, etc., is greed. इसलिए महात्मा गांधी जी बहुत प्यार से कहते हैं, we have got enough resources to meet everyone's need, but not enough to meet everyone's greed. And one of the beautiful quality and the value system is, can I have an attitude of gratitude of whatever I have? और ये बहुत beautiful एक consciousness है, my dear friends. So, having said this, $1 million question. अब मैं आपको एक क्वेश्चन, एक छोटा सा केस स्टडी बताकर आज का सेशन में वाइंड अप करना चाहूंगा. We were all speaking about goodness. We were all speaking about love. मुझे याद आता है, I was doing a session for the 7th and 8th standard students. और मैंने उनको एक छोटा सा होमवर्क दिया. मैंने कहा, let's learn from Steve Paul Jobs for the next 1 week. Next 1 week, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स, पर्टिकुलरली मदर के साथ बहुत स्नेह, प्यार, खुशियां, रिगार्ड, रिस्पेक्ट करना. चैरिटी बिगिंस एट होम. दुनिया का सोशल सर्विस बाद में हम करते, पहले घर से शुरू करते. तो एक हफ्ता मम्मा से बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल इरिटेट नहीं होना. वो जो भी सुनाती है एक कान से सुन लेना, भले उसी कान से निकाल दो, लेकिन गुस्सा मत करना. एंड दिस वाज द सोशल सर्विस आई गिव टू ऑल young boys and girls of 7th and 8th standard students. एक हफ्ते का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और फिर मैंने कहा, एक हफ्ते के बाद अगर आपने मम्मा से बिल्कुल गुस्सा नहीं किया तो यू शुड टेक हर सिग्नेचर एंड देन यू शुड ब्रिंग इट टू मी. करेक्ट? तो सब लोग ने सिग्नेचर दिया. मम्मी पापा आए, बोला, स्वामी सर, एक हफ्ते तक बच्चे घर के अंदर इतना अच्छा समाज सेवा कर रहे थे, उनके समाज सेवा देकर हम लोग भी थोड़ा सुधरने लगे. सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन. Now the next year again I did this program. So there was one girl whose name was Ananya. She was in the 7th standard. So she came to me and told, sir, इस बार भी आप समर कैंप कर रहे हैं? मैंने कहा yes. Sir, I would love to join this summer camp. मैंने कहा yes. बोला सर with a small request sir. मैंने कहा बोलिए. बोला सर, पिछले साल जो आपने मम्मा के लिए हमको होमवर्क दिया था ना, मम्मी डैडी के साथ बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, I would love to join this camp with small conditions apply. सर वो मम्मा वाला होमवर्क इस बार मत देना. मैंने कहा क्यों? आपने अपनी मम्मी को बहुत रिस्पेक्ट दिया, रिगार्ड दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, आपको अच्छा नहीं लगा? बोला सर, कैन आई हैव अ ऑनेस्ट कन्फेशन विथ यू? मैंने कहा बोलिए. बोला स्वामीनाथन सर, पहले क्या होता था, मुझे ना थोड़ा सा पैसे की जरूरत पड़ती थी टू बाई चॉकलेट्स, टू बाई आइसक्रीम, टू बाई अ न्यू फ्रॉक, राइट? तो मैं मम्मा से बहुत स्नेह प्यार से बोलती थी. मम्मा मुझे कुछ देती नहीं थी तो मैं जिद करती थी, हठी योगी बनती थी, भोजन नहीं करती थी, उपवास में बैठ जाती थी. तो मम्मा को इतना गुस्सा आता, ठक करके मुझे चाटा लगाती थी. फिर कुछ समय के बाद मम्मा रियलाइज करती है बच्ची को चाटा नहीं मारना चाहिए, थोड़ा सा मुझे पैसे दे देती थी और कहती, बच्ची तेरे को चॉकलेट आइसक्रीम खाना है, सखियों के साथ कहीं जाना है, तेरे को फ्रॉक खरीदना है, तू कर ले. लेकिन सर पिछले साल आपने होमवर्क दिया था ना, तो आई आस्क्ड मनी फ्रॉम माई मम्मा. बहुत स्नेह प्यार से मैंने पूछा, क्योंकि आपने वो होमवर्क दिया था. एक हफ्ते तक इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया. एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला मेरी जो मम्मा है ना, शी वॉज इन अति इंद्रिय आनंद की बच्ची सुधर गई है. लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ. एंड $1 million क्वेश्चन इज, व्हाई शुड आई बिकम गुड? व्हाई शुड आई बिकम गुड? क्या जवाब दूं? और जैसे अनन्या ने ये प्रश्न पूछा ना, माय हेड स्टार्टेड रोटेटिंग एट अ टेरिफिक एंगुलर वेलोसिटी, और मुझे लग रहा था जैसे मैं धरती धीरे 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 है ना अलग हो रही है और मैं सीता की तरह उसमें समाता जा रहा हूँ. क्योंकि फॉर द लास्ट 20 years आई हैव बीन टेलिंग यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी अ गुड पर्सनालिटी. बट दिस अनन्या सेज, सर गुड होकर कोई फायदा नहीं है सर, मम्मा तो बड़ी खुश है कि बच्ची सुधर गई है. कितना प्यार से मैंने पूछा. उससे अच्छा तो धरने में बैठने वाला था, गुस्से में बैठे, हटियो करे, भोजन नहीं करे.
चाटा मिल जाता था, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम का भी प्रबंधन हो जाता था. Why should I become good? Why should I do social service? क्या जवाब देना चाहिए? If anyone wants to share, you can unmute and share it with me. क्या मैं जवाब दूं अनन्या को? What should I say to her? कोई फायदा नहीं आज की दुनिया में. Yes, yes, my dear girl. That we should be good and do good deeds without any strings attached. ठीक है बाबा, लेकिन वो छोटी सी बच्ची है ना, चॉकलेट और आइसक्रीम खाने का तो मन तो करता है ना, राइट? यस, आई डू अग्री कि आवर सोशल सर्विस शुड बी अनकंडीशनल, लेकिन उससे अच्छा तो था कि थोड़ा हटी होगी बन गए, थोड़ा गुस्सा किए, चाटा मिला, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम का भी प्रबंधन हो गया. फ्रॉक भी खरीद सकते हैं, नया ड्रेस खरीद सकते हैं, डिजाइनर सूट खरीद सकते हैं. अब स्नेह प्यार दिया, कोई फायदे नहीं हुआ. आज के कलयुग के जमाने में सोशल सर्विस करके कोई फायदा नहीं है. What should I reply? What should I reply to that girl? You know, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मेरे रातों की नींद उड़ा दिया. और मैं हर व्यक्ति से पूछता था, और मैं वो अनन्या को जाकर जवाब देता था, और उसका चेहरे को रीड करता था, whether she is convinced of that answer or not. And one of the best answers which I like, I will share it with you. इससे अच्छा अगर आपको जवाब मिलता है ना, राइट, आप जरूर जरूर मेरे साथ शेयर करना. The best answer which I love to give is when she asks, why should I become good? It is all about the balance sheet of life. It is all about the balance sheet of life. मैंने अनन्या से कहा, अनन्या, you required money to buy your designer dress, to buy your frock, to buy ice cream, chocolate, etc. etc. Yes, sir. मैंने कहा, okay अनन्या, just imagine करो, you are traveling on the road, और कुछ जंक्शन में ना आपको कुछ ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं जो कुछ बेच रहे होते हैं या कुछ मांग रहे होते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू अनन्या एंड दोस चिल्ड्रन? तो अनन्या ने फटाक से जवाब दिया, सर उनके पास पैसे नहीं है और मेरे पास पैसे हैं. तो मैंने कहा, नहीं अनन्या, आप तो नहीं कमाते हो ना. नहीं, मेरे पेरेंट्स के पास पैसे हैं. तो फिर मैंने अनन्या से पूछा, अनन्या, यू नीड टू थिंक अबाउट कि व्हाई डिड यू टेक बर्थ इन सच अ फैमिली where your parents are able to meet all your requirements, and what galti these children have done, whether they are begging or they are asking or they are selling something. And the moment I asked this question, now Ananya started thinking about it. Then I told Ananya, in the balance sheet of life, we have got two type of wealth, which some or other way in the love letter, Steve Paul Jobs was trying to communicate. There are two wealth. One is what is called as a visible income, and number two is what is called as the invisible income. एक होता है स्थूल धन और दूसरा होता है दिव्य धन. मैंने अनन्या को कहा, एक हफ्ता अपनी मम्मा को बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत रिगार्ड दिया, आपको स्थूल धन नहीं मिला, लेकिन आपका दिव्य धन इतना बढ़ गया because of the blessings that you got from your parents. It is blessings. And therefore it is always said, count on your blessings. और फिर मैंने अनन्या को कहा, अनन्या, आप आज इतना अच्छा परिवार में जन्म लिए, it is not just a coincidence. It is because of the invisible income that you have accumulated over the ages. Therefore you have taken birth where you have got everything that God can give you. Correct? अब आपको ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे आने वाले समय पर आपका दिव्य धन बढ़े. And people who have got lots of invisible income, they will always be healthy, wealthy, and happy. This is a cosmic law, action and reaction. Then I gave the example of Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Kalam बचपन में ना न्यूज़पेपर बेचते थे. Went on to become the highest constitutional post, the president. और president रहते हुए 5 years, the gates of the Rashtrapati Bhavan was opened maximum time for children like you, because बच्चों से सबसे ज्यादा blessings मिलती है. When he retired and when he was leaving the Rashtrapati Bhavan, he had 2 suitcases. एक सूटकेस में उनके कुछ ड्रेस थे और दूसरे सूटकेस में उनकी कुछ किताबें थी. In the year 2015, when Dr. Kalam passed away from this planet Earth, he had innumerable blessings with him. And that is what is very, very important. और जैसे ही मैंने ये दिव्य धन के बारे में कहा, मैंने देखा अनन्या के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई. मुझे इतना अच्छा लगा. उस दिन मैंने अपने MBA क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को बताया
अबाउट द इनविजिबल इनकम, द दिव्य धन। एक स्टूडेंट ने कहा सर आज तक बैलेंस शीट में हमको विजिबल इनकम का डेबिट और क्रेडिट बताया गया, पहली बार सर आपने हमको इनविजिबल इनकम दिव्य धन के बारे में बताया, थैंक यू वेरी मच सर। 2 दिन के बाद जब मैं वो उसी क्लासरूम में आया तो एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया, सर आई वांट टू शेयर माय अनुभव विद दिव्य धन। मैंने कहा बोलिए। बोला सर आई वाज सो मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय योर कांसेप्ट ऑफ दिव्य धन कि क्लास के बाद जैसे मैं लोकल ट्रेन मुंबई का चढ़ा, इतनी भीड़ सर, अचानक मुझे सीट मिल गई। मैं बैठ गया, फिर मुझे आपकी बात याद आई, मुझे ही सीट क्यों मिला? बिकॉज ऑफ माई दिव्य धन। फिर दूसरी बात याद आई कि आगे के लिए मुझे दिव्य धन बढ़ाना चाहिए ना, आई शुड डू लिटिल बिट ऑफ सोशल सर्विस। तो देयर वाज वन सीनियर सिटीजन जो भीड़ में पिस रहे थे। मैंने कहा उनको बुलाया, आइए आइए सर, नजदीक आइए, नजदीक आए। मैं खड़ा हुआ, उनको बैठने के लिए कहा। सर इतना अच्छा लगा, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आगे मुझे दिव्य धन बढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। देखा क्यों, क्या हुआ? बोला सर वो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक को बिठाया, सर थैंक यू तो छोड़ो, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं किया, मुस्कुराया भी नहीं सर। इतना दिल को ठेस पहुंचा और मुझे समझ में आ गया सर ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में ये एनएसएस करके कोई फायदा नहीं है सर, कोई सोशल सर्विस करके फायदा नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिव्य धन। तो मैंने स्टूडेंट से कहा यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर फिलॉसफी ऑफ दिव्य धन। माय डियर बॉय, जब आपने सीनियर सिटीजन को बिठाया, आपका दिव्य धन तो बढ़ गया। अगर वो आपको थैंक यू धन्यवाद कह देते थे ना, तो आपका दिव्य धन थोड़ा सा कम हो जाता था। That is how the philosophy of दिव्य धन works, and that's what girl said, unconditional. जैसे ही मैंने कहा ना, that boy understood. He said, सर एक काम करूंगा, फिर से आज उसी लोकल ट्रेन में चढ़ूंगा, उस सीनियर सिटीजन को पकड़ूंगा और उसको धन्यवाद दूंगा कि उस दिन धन्यवाद नहीं बोला, जिसके कारण मेरा दिव्य धन बच गया, मेरा दिव्य धन बच गया। So my dear friends, सोशल सर्विस का मतलब नहीं है कि धारावी स्लम्स में किसी को पढ़ाना सिखाना। आप कर सकते हो तो जरूर करो। मैं अपने एमबीए स्टूडेंट को सारा धारावी स्लम्स में भेजता हूँ व्हेन यू आर डूइंग योर एमबीए। बट व्हाइल यू आर इन 11th एंड 12th, लॉकडाउन के समय पर आप बाहर जाकर सोशल सर्विस मत करो, घर से शुरू करो। आज आप बहुत प्यार से मम्मा को कहेंगे, मम्मा आज मैं आपके लिए सब्जी बनाकर देती हूँ। वाओ, करेक्ट। मम्मा का चेहरा थोड़ा सा होगा, फिर लगेगा एनएसएस का काम चल रहा है, थोड़ा तो परिवर्तन आ रहा है बच्ची में, राइट? एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, शी मे नॉट एक्नॉलेज यू, बट योर दिव्य धन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। फॉर द लास्ट 20 years स्वामी इज डूइंग दिस। मुझे जीवन में कभी भी किसी बात की कमी महसूस नहीं होती है। इतना हल्कापन, रात को बहुत अच्छी नींद आती है। कोई मेरे पर गुस्सा भी करे ना, ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, राइट? कैन वी शेयर द इमोशंस ऑफ लव? कैन वी शेयर द इमोशंस ऑफ पीस? एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप social service is all about increasing your divya dhan. Again, Sir Albert Einstein. This note was written by Albert Einstein, which was recently sold for around $1.6 million. What Albert Einstein wrote was, a calm and modest life brings more happiness than the constant pursuit of success combined with constant restlessness. Once of the most brilliant minds said, a peaceful mind, a peaceful life is the key to happiness. मैं नहीं कह रहा हूँ, आइंस्टीन कह रहे हैं। और आइंस्टीन ने सिर्फ फिजिक्स को नहीं समझा, उसने मेटाफिजिक्स को भी समझा। तो क्या करना चाहिए? वी शुड मेक आवर माइंड अ वेरी बेस्ट फ्रेंड। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप सभी दोस्तों और सखियों से बात कर रहा हूँ ना, तो आई एम यूजिंग अ लैंग्वेज, आई एम कम्युनिकेटिंग इंग्लिश, हिंदी, राइट? उसी तरह the best way of social service today is counseling, having a heart to heart communication with people, दिल से दिल का संवाद। लेकिन हम दूसरों से दिल का संवाद तभी कर सकते हैं जब हम अपने मन से बात कर रहे हैं, अपनी मन को एक अच्छी सखी बनाएं। तो बताइए दोस्तों, मन की भाषा कौन सी है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड? जरा चैट में लिखो, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड? मन की भाषा कौन सी है? मेडिटेशन। वाओ। What is the language of the mind? मन की भाषा क्या है?
What is the language? प्यार. Wow. Happiness. Hello. प्यार is an emotion. Peace is an emotion. अगर माँ को बच्ची से प्यार होता है तो माँ क्या कह रही है? आई लव यू. दैट्स इंग्लिश. हिंदी में माँ क्या कहेगी? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. बंगाली में माँ क्या कहेगी? अमे के तुम्हें बालो बच्ची. मलयालम में क्या कहेगी? ज्ञान निंदते वाले कुदल स्नेही कुदंडे. लव इज एन इमोशन. कम्युनिकेशन इज इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मलयालम, पंजाबी. मैं पूछ रहा हूं मन की भाषा कौन सी है? अच्छा, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर? चलो प्यार व्यार बाद में देखेंगे, पहले दिमाग देख लेते हैं. बाइनरी कोड. नंदिनी, यू आर वेरी बुद्धिशाली. हाँ, आपका दिमाग तो काम कर रहा है. अब बताओ मन की भाषा क्या है? मन की भाषा पता क्या है? द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस. मन की भाषा चित्र है. द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, राइट. तो क्या करना है पता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछता हूं, आप जिस कमरे में बैठे हैं ना, चारों तरफ अपने मन को लेकर जाइए और चारों तरफ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है आप जरा चैट में लिखेंगे. चारों तरफ देखिएगा क्या क्या दिखाई दे रहा है. स्वामी लिखेगा झूला दिखाई दे रहा है, मेरे को ग्लास दिखाई दे रहा है, बुक दिखाई दे रहा है, मोबाइल दिखाई दे रहा है, पंखे दिखाई दे रहे हैं, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, नदी दिखाई दे रहा है. आपको क्या दिखाई दे रहा है? लिखो जरा चारों तरफ. जरा चारों तरफ मन के द्वारा. बुक्स दिखाई दे रहा है, जूम मीटिंग दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप दिखाई, चेयर, सोफा, बेड, प्लांट. आपकी जहां आप बैठे हो उसके चारों तरफ चेयर, सोफा, चेयर, टेबल. वेरी गुड, वेरी गुड. नोटबुक, लैम्प, पेन. ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं. चारों तरफ देखो. सूर्य दिखाई दे रहा है. क्या यार, यू आर सिटिंग इन अ टूरिस्ट स्पॉट और व्हाट? घर में बैठकर उसको सूर्य दिखाई दे रहा है. बुक्स, मैथ्स फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, पिलो दिखाई दे रहा है. आई होप यू आर नॉट डोजिंग ऑफ माय डियर गर्ल. प्रज्ञा को पिलो दिखाई दे रहा है. अरे वाह. मंदिर दिखाई दे रहा है. अच्छा, आपके रूम में छोटा मंदिर होगा. विंडो दिखाई दे रहा है, प्लान दिखाई दे रहा है, बेड दिखाई दे रहा है, फ्लोर दिखाई दे रहा है. आप लोगों ने इतना जगह अपने मन को घुमाया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भूल गए. देखा, दिमाग तो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, चारों तरफ मन को घुमा रहे हैं. गॉड दिखाई दे रहा है, ब्लैंकेट, पिलो के साथ ब्लैंकेट, वॉल्स दिखाई दे रहा है. अरे भाई, मन को चारों तरफ घुमाइए प्रिय सखिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गए. देखो चारों तरफ देखो. यू आर राइटिंग सम वर्ड, आई हैव टू चेक ऑन गूगल व्हाट डज इट मीन. लाइट दिखाई दे रहा है. चारों तरफ मन को लेकर जाओ ना प्रिय सखी. क्या दिखाई दे रहा है? फोन दिखाई दे रहा है, कर्टन दिखाई दे रहा है. किचन में नहीं जाना, वहीं बैठे रहो. नहीं तो बोलिए फ्रिज, आप जाके फ्रिज भी देखोगे, कर्टन दिखाई दे रहा है. यही तो प्रॉब्लम है ना, चारों तरफ मन को लेकर जाते हो सखियां, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हो. पता सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? आप. यू वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. चारों तरफ में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पता कौन है? आप. लिखो सब लोग, सेल्फ लिखो. यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दैट स्मॉल ब्यूटिफुल रूम यार. माई सेल्फ. अपने आप से प्यार करना आरंभ करो. कितने तरफ हमारी दृष्टि बाहर की तरफ जाती है, बट आई डोंट सी माई सेल्फ. राइट? इसलिए कहते, जब मैं कहता हूं माई माइंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ. मैं कौन हूं? यस, करेक्ट. इसलिए दर्पण को देखना. हम लोग प्री कोविड सिचुएशन में हर एक से पूछते थे, हाउ आर यू, आप कैसे हो. और आजकल हम लोग अब बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, मास्क वास्क पहन के बैठते ना, तो कभी दर्पण में देखकर अपने आप से पूछना, हु आर यू. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ वेरी वंडरफुल स्लोगन. आप बहुत प्यार से इसको रीड करना. सोशल सर्विस में ना ये डायलॉग हमेशा याद रखना. इफ यू वांट टू अवेकन ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, then awaken all of yourself. If you want to eliminate the suffering in the world, then eliminate all that is negative in yourself. Truly the greatest gift you have to give is that of your own self transformation. That of your own self transformation. Yes. इसलिए कहते हैं self transformation leads to world transformation. इसलिए मैं फिर से वो क्वेश्चन पूछूंगा. अपने मन को चारों तरफ घुमाइए
और क्या दिखाई दे रहा है, अपने आप को देखने का आरंभ करिए और फिर महसूस करिए एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड यू आर अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जैसे हमेशा हम टीचर्स कहते हैं ना, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम। द फुल फॉर्म ऑफ सेल्फ इज SELF, सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म। अब मैं फिर से पूछता हूं, आप जहां बैठे हो ना, चारों तरफ अपने मन को लेकर जाकर बताइए अब क्या दिखाई दे रहा है। चार्ट में लिखो, चार्ट में लिखो। देखो, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, राइट। हैविंग सेड दिस, इसको हमेशा याद रखना, यू आर अ रियल स्टार, यू आर ट्रू। और आजकल ना बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपर स्टार। उस दिन मुंबई में प्रोग्राम कर दे, खड़े करके सर रॉक स्टार ऑल्सो सर। मैंने कहा तेरे को जो स्टार बनना है बन, राइट। हैव अ हाई स्टेट ऑफ सेल्फ एस्टीम। और पता है क्या करना है, हर दिन अपने आप को देखना एंड सी द डिविनिटी विद इन योरसेल्फ, पीस, पावर, लव, एंड दिस collectively is what is called as consciousness. Okay, I started with a love story. I will wind up with a love story. In this world there is two love which is very, very pure. One is God's love, and number two, the mother's love. Look at the Chotu. He's so happy in his mother's lap. एक last love story बताकर मैं wind up करता हूँ, and this love story is dedicated to all mothers of this world, and particularly to your own mother, whom I lost many years before because of cancer. But it's a very wonderful love story. Once mother was preparing breakfast in the kitchen. The small boy walks up to mama and says, Mama, I want to present the bill for this month. Mama कहती, what? बोला, yes. So mama reads the bill. You know what does the boy write? Mama, this month you asked me to go to the shop and buy things thrice at the rate of 3 rupees per trip, 9 rupees bill. मामा अपने बकेट ऑफ पानी को वहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा 5 रुपीज। मामा अपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा वेरी चैलेंजिंग टास्क मामा, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज। सिंस यू आर माई डियर लविंग मम्मा, 6 रुपीज फेस्टिवल डिस्काउंट, ओवरऑल बिल 60 रुपीज। मामा वो बिल को पढ़ते अपने छोटू को देखते, वेरी क्यूट बॉय, और मामा भी मुस्कुराती है। द अदर एंड ऑफ द बिल विच इज अ ब्लैंक पेपर, मामा राइट्स, फॉर 9 months I took care of you through my own blood, no charge. I taught you how to read, write, walk, no charge. Whenever you used to fall sick, the entire night I used to be awake, took care of you, no charge. बच्चे, जब भी आप स्कूल से थके आ रहे वापस घर आते थे ना, मैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बना कर देती थी, no charge. और मामा नीचे लिखती है 0 rupees bill and gives to the boy. तो बेटा वो बिल को रीड करता है, अपनी मम्मा को देखकर कहता, मम्मा आई एम वेरी सॉरी मम्मा। अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है, मम्मा पेड इन फुल, पूरा पेमेंट हो गया। मम्मा पेड इन फुल बट इनडेप्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। सो कीप योर मम्मा हैप्पी, द होल वर्ल्ड विल बी हैप्पी विथ यू। एक माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, दूसरी माँ हमारी अपनी धरती माँ, और तीसरी माँ वो ईश्वर। गीत गाते ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। और जिस बच्चे के पास ये तीनों माँ की ब्लेसिंग्स मिलती है ना, आपका दिव्य धन इतना बढ़ जाता है, आप देखेंगे यू विल बी ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। With these positive notes, I would love to give you a very wonderful gift on the occasion of Happy Christmas and Happy New Year. Please share it with your family members, and that is a full form of family, FAMILY, and the full form of family is Father and Mother, I love you. So with this positive note, it was a great pleasure interacting with all of you. May you be blessed with all success in your life. I'm sure you have understood what I was trying to communicate. So thank you very much. Once again, thanks to the organizers. Thank you, sir. Thanks, Thank you. madam, and Thank all you, of you, sir. dear Thank students you. and dear Thank Sakhi you, also. sir. Over to you.
On behalf of the NSS wing of Carmel Convent School, Chandigarh, I extend a heartfelt gratitude to our guest speaker, Dr. Swaminathan, who spent his valuable time gracing the occasion. Today, we got the opportunity to hear you talk about the value of values and the importance of self, and many more such things, which definitely were very thought provoking topics for us all. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. Thank you for adorning today's session. Thank you, sir.